क्या ना बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग अदरवाइज कहते हैं RDNA टेक्नोलॉजी. Okay, this is called recombinant DNA technology. Yeah, genetic engineering. Fine. So it is also called as genetic engineering. Clear? Now, in case of biotechnology, so there are some key points. तो उसी key points को हम लोग discuss करेंगे. तो biotechnology began way back during the process of domestication. Okay, तो way back during the process of domestication, आपका जो biotechnology ready हो गया था. But कौन सा part of the biotechnology that is called classical biotechnology. Okay, जैसे दूध, दही, पनीर, and one of the one of the first biotechnological products क्या था? दारू. That is mother. Okay, so that is it. So these things, mother, processing meat. अगर आप देखोगे foreign countries, they process meat a lot, and जो cheese processing जो है वो करते हैं. Okay, so that is the very very important things. But in case of your क्या जो आज का बायोटेक्नोलॉजी, we are talking different things. We are talking about making vaccines. We are talking about making proteins, hormones, etc. है कि नहीं? So that is why, so इस चीज के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं. So that is known as क्या modern या advanced biotechnology. ठीक है? चलिए, so this is the concept. तो इसीलिए if you are seeing the screen, I think it is visible to you. So Yes, sir. it discusses the techniques using live organisms or enzymes from organisms to produce products and processes useful to humans. Okay, तो इसलिए अगर हम लोग definition wise जाएं तो if you can get a 1 mark question, तो आपका definition क्या हो जाएगा? So it deals with techniques or using live organisms or uska products to produce products and useful processes that are useful to humans. In this sense, making curd, bread, wine, which are all micro-mediated processes, could also be thought as a form of biotechnology. Okay, आज के डेट पे अगर हम लोग दूध बनाना, दही बनाने को देखेंगे, ऐसा लगता है कि वो ट्रिवियल सेंस है, but that can also be taken as biotechnology. Okay, now however it is used in a restricted sense today to refer to such of those processes which use GMOs. माने आजकली when you are using the word biotechnology, तो हम लोग क्यों उसको यूज कर रहे हैं? So it is used in a restricted sense today to refer to such of those processes which use GMOs, genetically modified organisms, to achieve something on a very large scale. जैसे अब सपोज हम लोग एक बैक्टीरिया लें and we have to make insulin, तो हम एक लार्ज स्केल में इंसुलिन बना सकते हैं. ठीक है? So इसलिए तो present day biotechnology is restricted to this use, but actually biotechnology को हम दो अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं. One is called classical biotechnology and one is called advanced biotechnology. ठीक है? तो what is classical biotechnology? तो classical biotechnology में हम लोग डिस्कस करते हैं किस चीजों को? Yes, all those previous things. Okay. Now, the European Federation of Biotechnology has given the definition that encompasses both traditional and modern molecular biotechnology. Okay, तो आजकल हम उस दोनों को ही इंक्लूड करते हैं. So according to it, the integration of natural science and organisms, okay, cells, parts thereof, and molecular analogs for products and services. तो ये आपका मोस्ट रिसेंट डेफिनेशन है. एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट?
according to the EFB or European Federation of European Federation. मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बार बार कलर चेंज हो रहा है. सो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार ये मोस्ट रिसेंट है. ओके, तो द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स thereof एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, माने उस जैसा मॉलिक्यूल्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. So this is the definition of biotechnology as given by the European Federation of Biotechnology. ठीक है. Now, तो इसीलिए पहले हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे लाइंस, फिर वी विल गो इनटू द डिटेल्स. प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो ओके, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, देयर आर टू टेक्निक्स. एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, टेक्निक्स टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, है कि नहीं, एंड टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिजम्स एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. मतलब हम लोग क्या करेंगे, होस्ट के बॉडी में किसी तरह हमारा डिजायर्ड जीन को डालेंगे एंड फिर उसको मॉडिफाई करके हमारा प्रोडक्ट उससे बनवाएंगे. सो दिस इज योर कंसेप्ट. सेकेंड इज बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग. ओके, व्हाट इज बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग? Maintenance of sterile ambience in chemical engineering processes to enable growth of only the desired microbe or cell in large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccines, etc. समझ रहे हो? अब जैसे हमें कुछ बायोटेक्नोलॉजिकली बनाना है, ओके, तो सपोज हमें कुछ बायोटेक्नोलॉजिकली बनाना है, तो हम क्या करेंगे? तो हम लोग आपका बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग को यूज करेंगे. नाउ व्हाट इज बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस, माने जैसे आप कुछ बना रहे हो, सपोज अल्कोहल बना रहे हो, इथेनॉल. तो सपोज इफ यू आर मेकिंग इथेनॉल, अगर थोड़ा सा भी कंटामिनेशन हो गया तो क्या बन जाएगा? मिथेनॉल. एंड उसको पी के लोग अंधे हो जाते हैं. एंड यू मस्ट हैव सीन इन द न्यूज so many times there are cases that दारू पी के लोग परेशान. तो क्या हो गया? तो वो जो दारू बना रहे थे उसमें उन्होंने कंडीशंस को मेंटेन नहीं किया, तो डिजायर्ड माइक्रोब्स के साथ साथ कुछ अनडिजायर्ड माइक्रोब्स भी वहां होंगे जो आपका गड़बड़ कर देंगे प्रोडक्ट्स. ठीक है. सपोज आप कुछ बना रहे थे, कुछ और भी बन जाएगा एंड सो ऑन. चलिए, सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स. तो क्या करेंगे? तो इसीलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो उसके बाद जो है हम उसको डिस्कस करें. तो मैं इसको पहले आपको समझा देता हूँ, फिर ये लाइंस को हम लोग पढ़ेंगे, बिकॉज वी हैव टू बी वेरी वेरी कन्वर्सेंट विद एनसीईआरटी इन ऑल दीज टॉपिक्स, क्योंकि एप्लीकेशन में एनसीईआरटी से ही सब कुछ लाइन बाय लाइन आएगा. नाउ अब सपोज तो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे बेसिक स्टेप्स. ओके, तो बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व, ओके, बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोटेक्नोलॉजी. ओके, तो बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोटेक्नोलॉजी. तो जिस तरह का बायोटेक्नोलॉजी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली एडवांस बायोटेक्नोलॉजी, उसमें कुछ बेसिक स्टेप्स है, उसको हम डिस्कस करेंगे. नाउ तो इसीलिए अभी टारगेट क्या है, तो इसके पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं पहले. नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है वो क्या है? yes. तो नंबर 1, तो आप क्या क्या बना सकते हो सोचो. तो नंबर 1 है प्रोडक्शन
of क्या desired proteins. प्रोटीन्स में क्या क्या आ सकता है? हॉर्मोन्स, ओके, प्री वैक्सीन्स, ओके, हार्मोन बना सकते हो आप, प्री वैक्सीन बना सकते हो, ओके। तो इसलिए जो डिजायर्ड प्रोटीन्स आपको चाहिए वो आप बनवा सकते हैं, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट, ओके, compensating the absence of some genes by introducing the genes from some healthy organism to the affected, okay, using microbes, ठीक है। तो अगर हमें जैसे कोई जीन किसी के अंदर डालना है, उसको हम माइक्रोब्स के थ्रू डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, जो हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल वो हम लोग एक बाद में अलग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। नाउ तो इस स्टेप में हमें क्या करना है? तो इन दिस स्टेप, द बेसिक स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सबसे फर्स्ट क्या है? आइडेंटिफिकेशन, ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए हेल्दी होस्ट, ठीक है। हमें एक हेल्दी होस्ट ढूंढना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए हेल्दी होस्ट हु हैज द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो उसके पास अवेलेबल होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्दी होस्ट was the gene of interest in functional conditions. इसका मतलब क्या है? देखो भाई, जब हम लोग एक ही जाइगोट से बने हैं तो हर सेल में वो जीन है, ओके। सो एवरी सेल हैज दैट जीन, बट हर सेल में वो फंक्शनल हो ये जरूरी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आपको कौन सा जीन चाहिए? फंक्शनल जीन, नॉट द नॉन फंक्शनल वन। नॉन फंक्शनल वन तो शायद आपका बंदा में भी हो, ओके। सो लाइक दैट। तो इसलिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए हेल्दी होस्ट हु हैज द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, पॉइंट नंबर 2, obtaining, okay, obtaining the gene of interest from the particular cells, okay, obtaining the gene of interest from the particular cells, जिस सेल्स में है वहां से ऑब्टेन करना। ये पहले यूज होता था एक्चुअली, आजकल तो हम बना भी सकते हैं। टुडे यू कैन मेक ए जीन, ओके। तो इसीलिए आजकल हम लोग जीन बना सकते हैं। ये जो स्टोरी मैं आपको बोल रहा हूँ ये मेरे फादर के टाइम का स्टोरी है। माय फादर इज आल्सो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ना, तो ये उनके समय का स्टोरी है। जो बुक में आपका दिया है ना, एली लिली वाला ह्यूमिलिन प्रोडक्शन, तो ये उनके समय का स्टोरी है, ठीक है। सो इसलिए बिकॉज वो तब वो मुश्किल था, बिकॉज ऑब्टेन करना मुश्किल है बट प्रोड्यूस करना आसान है। तो वेरी सिंपल सा डाउट है शिबानी के मन में, तो उन्होंने क्यों प्रोड्यूस नहीं किया? वो कहिएगा, अगर प्रोडक्शन आसान है, हाँ, तो लोग क्यों नहीं प्रोड्यूस किए? सर इंस्ट्रूमेंट्स तब इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं थे। वेरी सिंपल, सोफिस्टिकेटेड नहीं, वो था ही नहीं। था ही बस नहीं। हमारे जो फिजिक्स या केमिस्ट्री वाले भाई बंधु थे उन्होंने वो यंत्र बनाया नहीं था, तो इसलिए हमें एक लॉन्गर एंड हाईली पेनफुल प्रोसेस करना पड़ता है। क्योंकि मैंने आपको जीन ढूंढने के लिए बोला है, उसका किडनी नहीं। अंडरस्टूड? सो ऑब्टेनिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर सेल्स, काइंडली नोट
that the gene has no physical identification marks and it is very small. Okay, it is very small and cannot be seen with eye, with microscopes. इवन माइक्रोस्कोप से भी आप उसको देख नहीं सकते. तो इसीलिए आप एक अंधे वाला काम कर रहे हो. You are doing something blindly. Okay? So it's like obtaining the gene of interest from the particular cell, okay, from the particular cells of the host. Of the hosts. Okay, या होस्ट नहीं, इसको हम डोनर बोलेंगे. Of the donor. तो जो देगा वो क्या है? वो डोनर है. एंड जिसको देगा वो रिसिपिएंट है. recipient. ठीक है? तो obtaining the gene of interest from the particular cells of the donor. Now, second, third है now inserting it into the microbe. ओके, ब्रैकेट में आप बैक्टीरिया ले सकते हो, प्रोटिस्ट्स ले सकते हो, एटसेट्रा ले सकते हो. ठीक है, मैंने आप ये ईस्ट भी ले सकते हो, आपका जो फेमस है जो प्रोटिस्ट ईस्ट. ओके, तो इसलिए आपको इसको इंसर्ट द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ओके, इनटू द क्या वेक्टर ऑफ द माइक्रो. ओके, तो वेक्टर क्या होता है? जो ये काम आपके लिए करेगा. ओके, यू कैनॉट टेक द जीन एंड एड इट इन इट्स जीनोम. तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? किसी के सहारे भेजना पड़ेगा. ओके, सपोज अनिशा इज स्टेइंग इन ए गर्ल्स हॉस्टल, तो यू कैनॉट सेंड हर ए बुक और लेटर. You cannot go inside, it is not allowed. You have to send it via media. ठीक है, तो आपको किसी ना किसी के थ्रू उसको भेजना पड़ेगा. आपके बहन के थ्रू, आपके मम्मी के थ्रू, आपके पड़ोसी के थ्रू, एनी गर्ल, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड. तो इसीलिए इंसर्टिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द वेक्टर ऑफ द माइक्रोब्स. ठीक है, सो gene of interest plus vector DNA is equal to recombinant DNA. R. ओके, recombinant DNA या उसको chimeric DNA भी बोलते हैं. Why it is called chimeric DNA? Because chimera are organisms which has features of more than one organism. तो अगर आपके डीएनए में एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला जाता है. ठीक है, तो पहले हमने उसको वेक्टर को दे दिया. नाउ फोर्थ स्टेप क्या है? इंसर्शन ऑफ द वेक्टर बैक to the body of its host. ठीक है, तो for example bacteria, protists, yeasts, etc. ठीक है, तो आपने जिससे वेक्टर लिया था अपना जीन को डलवाने के लिए, उसके अंदर इसको वापस भेजिए. Okay, the insertion of the vector back to the body of its host. हो गया. Now 5. Yes, sir. Yes, sir. Stimulate the microbe to पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. तो ये 6th पॉइंट है एक्चुअली. Stimulate the microbe, stimulate the
recombinant, okay, microbe to express the gene of interest, okay, and produce the desired proteins. ठीक है, बट इसके पहले आपको स्क्रीनिंग करना पड़ेगा. 5. Screen out the recombinant microbes, ब्रैकेट में microbes with rDNA or microbes with rDNA or vector, okay, or vectors having the gene of interest. ठीक है जी. अब आपने जो वेक्टर को डलवाया, तो डिड द होस्ट टेक इट, है कि नहीं? तो क्या होस्ट ने वो जीन लिया? तो अगर लिया तो ढूंढ के निकालो, है कि नहीं? तो ब्रिंग आउट द होस्ट, तो ब्रिंग आउट द होस्ट विच हैज टेकन द डीएनए. क्यों? सपोज मैंने एक ऐसे ही जो आई सेंड ए पैकेट ऑफ समथिंग टू ईट, तो मैंने देखा कि सबके लिए मैंने भिजवाया था, बट ओनली गर्ल्स हैव द पैकेट एंड बॉयज डोंट हैव इट. तो इसका मतलब क्या है? बॉयज ने वो पैकेट नहीं लिया, बट गर्ल्स ने वो पैकेट लिया. ओके, नाउ समझ में? तो इसको स्क्रीनिंग करना पड़ेगा. तो स्क्रीन आउट द रिकॉम्बिनेंट माइक्रोब्स, ओके ओके, एंड देन develop or grow them in a new culture. ओके, अब उनको अलग कर दो. हो गया. अब जो प्रोटीन्स बन गया, they may not be ready to use. ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग ऑफ द क्या desired proteins for purity and efficacy. ठीक है.